don't have kids if you think it's only about cute pictures, cuddles, nursery pictures, etc. I'm not saying this because I do not love my daughter. I love her so much. But I'm saying this because nobody told me the unfiltered truth about what happens when you become a mom. Hi guys, I'm Anjana, mother to a 2-year-old and someone who thrives on routines and structures. I believed in informed parenting rather than naive ones, and that's why I am shooting this new series of video called Before You Become Parents. In this series, I'll be talking on various topics, sharing real life insights and experiences based on my motherhood journey so far. My soul motive of creating this video is to talk about what really changes after you become a parent. I haven't seen a content before, maybe लोगों ने बनाया है, but मैंने कोई content नहीं देखा जहाँ पे लोग इतना डिटेल में life changes बताते हैं, and I wish I saw this before. Well, who is this video for? If you're somebody who is planning to have a child, अगर आप seriously try कर रहे हैं या casually सोच भी रहे हैं, या फिर आप already new parents हैं या pregnant हैं, या फिर you're somebody who's thinking should I have a child, maybe not have a child, you're contemplating. This video is for all of you guys because I talk about what is the real side of once you become parents. Why am I making this video? Well, it's based on my own experience of life. Let me tell you, my pregnancy was a planned one. In spite of that, when I became a mother, my life changed upside down. I was diagnosed by perinatal depression that went on till 8th month of my postpartum. It was pretty rough. The reason for that was one, because I lost my parents early and I suffered with some kind of loneliness. But one very big part was jumping into it without knowing what to expect. Mind you, nobody tells you the full truth. And this is one thing I realized in the postpartum phase कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं ऐसा होगा. And you might argue कि इसमें बताने का क्या है? How much can people tell you? So here it is. I want to tell you क्या actually change होता है. क्या आपको लोग बता नहीं रहे हैं बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि पूछना क्या है. बिफोर इवन आई जंप इनटू व्हाई एंड हाउ लाइफ चेंजेस, आई वांट टू टॉक अबाउट कि लोग बिफोर बिकमिंग अ मदर मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था. आई वाज सीइंग ऑल दीज मूवीज, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एंड समहाउ मेरे दिमाग में एक पिक्चर पेंट हो गया था कि हाँ बच्चे हो जाते हैं, फिर आप घूमने जाते हो, साथ खाते हो, पीते हो, मज़े करते हो. आप मोस्टली देखोगे कि मूवीज में बच्चे टैंट्रम नहीं थ्रो कर रहे. दे हैव गॉन टू अ पार्क और दे हैव गॉन टू अ नाइस फन फेयर. मॉम डैड खुश हैं. You know, they don't show you the real picture because entertainment is not education. It is made in a certain way because it's meant to show you nice things, make you feel good about stuff. और maybe किसी movie का वो main subject भी नहीं होता है, right? Second bit is all the Instagram reels that I see of cute little babies burping, singing. Oh, this baby is so cute. I want to have one of mine. That was my inspiration. मैं आपको ये direction of thought देना चाहती हूँ जो मुझे नहीं था कि क्या डे टू डे लाइफ में एंड बिगर इवेंट्स में चेंज होता है when you have a child. What to expect? I've broken it down into multiple segments. I am just telling you a comparison of me becoming a mom versus me before I became a mom. What my basic life looked like. Imagine, I woke up, I would, if it's weekday, maybe अपनी मर्जी से उठ रही हूँ या अलार्म से उठ रही हूँ. Maybe I'm spending 10 more minutes scrolling Instagram or YouTube or my phone, and then I drag myself to the bathroom, brush किया, ready हुआ, ऑफिस जाना है तो ऑफिस चले गए, वीकेंड है तो थोड़ा और चिल किया, मे बी नहाया भी नहीं, made a plan with friend to go out on brunch, and that's how my day got on. After becoming a mom, this is how my life has changed. ये मेरा morning है. I wake up in the morning, not by my own wish. पीछे मेरे को उठाने लगती है, मैं उठ जाती हूँ. उसके बाद मेरे को लगता है मैं बेड पे 5 मिनट और लेट हूँ यार, जस्ट आईज खोला है, बट शी वॉन्ट्स टू गो प्ले, सो शी इज कॉन्स्टेंटली आस्किंग मी मम्मी कम. उसके बाद द फर्स्ट थिंग इज आई हैव टू चेंज हर नैपी.
देन आई हैव टू ब्रश हर टीथ एंड ट्रस्ट मी, बच्चे ऐसे ई करके ब्रश नहीं कराते. यू हैव टू डू सो मच, यू नो, एंटरटेनिंग, नेगोशिएटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. देन यू आर लाइक ओ गॉड, अब खाना देना है. और ब्रेकफास्ट बना के आप खाना दे दोगे बच्चे को तो लाइफ बहुत ऑलरेडी ईजी है. बट नहीं, यू विल हैव टू टेल देम, यू हैव टू ask, force, push, convince them to eat. Then I get her ready for the nursery, make her hair and everything. और mind it, इस बीच में मैंने ब्रश किया है नहीं किया है, मैंने सुबह उठ के मैं बाथरूम भी नहीं गई हूँ. उसके बाद अब मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मैं उसको ड्रॉप करके आती हूँ नर्सरी, वापस आती हूँ, फिर घर का सारा काम करती हूँ. So this is my life right now. Second picture जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, how travel changes. Me before becoming a mom. I would just pack my stuff, try a few outfits, makeup रख लिया, ये रख लिया. I also had the possibility कि मैं 95% packing अगर मैं planned person हूँ तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कर लूँ. And then I leave, I get on the flight, stay in a nice hotel, me and my husband pay for our flight tickets, 2 लोग का hotel, cozy, nice, right? रात को take away लाया, movie देखा, दिन भर घूमे, all of that. After I became a mom, my planning, if I'm going on a vacation, first of all, the vacation itself has to be booked very cautiously. Pram friendly क्या areas है, कहाँ पे बच्चों को entertain कर सकते हैं. बहुत village में नहीं जाना चाहते, अगर वो sick हो गए तो we will need some medical facilities. Flight itself का timing क्या होगा, कहाँ रुकेंगे जहाँ पे everything will be easily reachable. मैं और मेरे husband 1 week पहले से we start packing stuff कि बच्चा का क्या क्या जाएगा. फिर भी हम 70% पैकिंग ही कर पाते हैं, 30% चीज़ें लास्ट मोमेंट पे पैक होती हैं, दूध का बॉटल, मिल्क पाउडर, ऑल ऑफ दैट. फिर आप ट्रैवल वाले दिन खुद 1 घंटा पहले उठ के रेडी हो गए हो, फिर बच्चे को रेडी कर रहे हो, फिर सब लोग जा रहे हैं, उसके पहले आपको ब्रेकफास्ट खिलाना है. एयरपोर्ट पे अगर सुबह की फ़्लाइट है तो यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज कि आप उसको टायर कैसे करोगे एयरपोर्ट पे ताकि वो फ्लाइट में सो जाए. उसके बाद हो सकता है बच्चा फ्लाइट में भी ना सोए, तो आप उसको एंटरटेन कर रहे हो कॉन्स्टेंटली. फिर उसके बाद आप जब वेकेशन पे गए हो तो मे बी आप घर पहुंचते ही होटल में सामान फेंक के निकल गए, नहीं कर सकते. आप घर जाओगे, रास्ते में 2-3 बार उसके डायपर चेंज करोगे, यू हैव टू सी व्हाट दे ईट. होटल्स आर आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर अस, तो सब कुछ एयरबीएनबी है. एयरबीएनबी जा करके हैव टू कुक मोर फूड. माई हस्बैंड हैज टू डू मोर चोर्स बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप द चाइल्ड का सिस्टम रनिंग, कि वो उसको खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है और वो बहुत अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है. आई वेरी ब्रीफली विदाउट हर्टिंग एनी इमोशंस वांट टू टॉक अबाउट फैमिली एंड सोशल लाइफ. You as a woman right now before having a child can choose कि आपको कौन से फैमिली से कितना इंटरेक्ट करना है, कौन से रिश्तेदारों से कितनी बातें करनी है. लेकिन आफ्टर योर बेबी अराइव्स इट चेंजेस. People want to be seeing your child, they want to be in best of their intentions, they want to talk. तो पहले ऐसा हो सकता था कि शशांक अकेला इंडिया चला जाए और मैं फिर नेक्स्ट टाइम अकेली आ जाऊँ, ठीक है, बिकॉज सेम टाइम पे नहीं हो पा रहा है, ऑफिस है, काम है, मन नहीं है. बट अभी ऐसा नहीं हो सकता है. वी हैव टू गो टुगेदर बिकॉज आवर बेबी हैज टू ट्रैवल, बिकॉज द फैमिली वांट्स टू सी हर. तो आपका फैमिली के साथ डायनामिक्स चेंज हो जाता है. लाइक क्लोजर फैमिली, योर मॉम, योर डैड, योर मदर इन लॉ, योर फादर इन लॉ, ऑल ऑफ दैट इज फाइन. बट आप दूर के रिश्तेदारों के साथ भी आप ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो एंड यू डोंट हैव अ कंट्रोल, मच कंट्रोल ओवर इट. देयर विल बी पीपल वांटिंग टू गेट मोर ऑफ योर टाइम. Going out, I want to talk about this because me and my husband always enjoyed going out, be it dinners, be it pubs, be it movie shows. After a child, we have not gone to a movie hall because she's still 2-year-old. Poor child can't watch or handle the screen or forget sitting 2 hours. You can't go to a pub like old friends. But मैं कभी कभी जाती हूँ, शशांक जाता है अपनी ऑफिस टीम्स के साथ, फिर वहाँ जाके हम ज़्यादा पी नहीं सकते क्योंकि रात को बच्चे एकदम अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. रात को उठ के रोने लगेगी, अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत खराब है, व्हाटएवर, समथिंग कैन हैपन. तो वी ड्रिंक वेरी लिटिल, इतना कि हाँ पार्टी में बने हुए हैं. यू कांट बी हंग ओवर बिकॉज दिस वन टाइम हमने अपनी बेटी को, मेरी मम्मी इन लॉ आई हुई थी, दैट्स द पर्सन आई वुड मोस्ट ट्रस्ट टू लीव माई डॉटर विथ. तो मैंने उनको बोला आप बेबी सेट कर लो इसको, आज रात को हम लोग पब जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ. हम 2 बजे आए, हमने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, लेकिन हमने रियलाइज़ नहीं किया कि नेक्स्ट मॉर्निंग हैंगओवर भी होगा. और हैंगओवर
बच्चा नहीं समझता, बच्चे को माँ और बाप चाहिए होते हैं, नॉट दादी नॉट दादा. जब आप सुबह सुबह उठोगे, द चाइल्ड वुड वांट यू, एंड it's of course natural, right? Plus going to restaurants has to be very very decisive. कहाँ हाई चेयर है, कहाँ बैठ सकते हैं, बच्चा कितना देर खाने देगा. ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, हम 10 मिनट में रेस्टोरेंट से निकल गए हैं. ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि हम रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किए हैं, पीच को अच्छा नहीं लगा, वी हैड टू पैक दैट फूड एंड कम बैक, और फिर थोड़ा मूड भी सड़ गया. बट दिस इज हाउ इट इज. One aspect that I didn't realize is you cannot fall sick as mums. You must have seen reels about it, but let me tell you the full details. मेरे को food poisoning हुआ है पहले भी, and I have woken up, I have vomited, I have eaten a few medicines, got a little hug and cuddle from my husband, felt better, drank some water, slept. Versus I had a food poisoning after my daughter was born. मैं 2 बजे 3 बजे सुबह, मेरे को याद नहीं है, मैं बाथरूम गई. Of course the commotion woke my daughter up. मैं वॉमिट कर रही हूँ, मेरी बेटी रो रही है, ना शशांक मुझे देखे या बेटी को, सो ही इज हैंडलिंग द डॉटर. फिर मैं वॉमिट करके इतना रो रही है कि मैं पैनिक हो गई, तो मैं वॉमिट करके जल्दी जल्दी वापस आई. एंड देन पीची वॉन्ट्स टू बी विथ मम्मी बिकॉज शी इज थिंकिंग क्या हो रहा है, वाई माई मॉम इज बिहेविंग इन अ सर्टेन वे. बच्चे समझ जाते हैं. सो नाउ आई एम हैंडलिंग हर, बट आई एम फीलिंग सुपर सिक एंड माई टमी इज लाइक हर्टिंग. Then Shashank goes to the bathroom, flushes the vomit out. I'm sorry about these details, but yes. Then he comes back. अब Peach has gotten very clingy to me. अब उसको मम्मी चाहिए, पर मैं रो रही हूँ क्योंकि मुझे पेन हो रहा है, वो मुझे मेडिसिन दे रहा है. It's a full chaos. Somehow हम लोग पीची को रॉक करके सुलाएं. I then slept off. फिर सुबह उठ करके 5 बजे she is again awake and she's like मम्मी उठो, मम्मी up. But mummy is not feeling well. तो डैडी उसको थोड़ी देर लेके चला गया, बट माई स्लीप हैज़ बीन इंटरप्टेड. सो योर बेसिक्स चेंज एंड आई डिड नॉट नो. आप सोचोगे क्यों नहीं पता है, ये तो सबको पता है. नहीं, सब लोग इतने डिटेल में नहीं सोच पाते. आई हैवंट सीन इट फ्रेम बाय फ्रेम. तो ऑफकोर्स जब व्हेन माई लाइफ स्टार्टेड एज अ मदर, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज सो मच, दिस इज सो मच. Listen guys, motherhood is beautiful. All those songs sung about mothers and मॉम की जो तारीफ़ें करती हैं, बादशाह कह रहा है तेरी मम्मी की जाए क्या चीज़ बनाई. इट्स अमेजिंग, इट्स ट्रू. मदरहुड बहुत अमेजिंग फीलिंग है, बट देयर आर नॉट ओनली हाई पॉइंट्स. नो दैट देयर आर लॉट ऑफ लो पॉइंट्स. देयर आर टीयर्स, देयर इज सैडनेस, लोनलीनेस, कॉन्स्टेंटली मिसिंग योर ओल्ड सेल्फ, कॉन्स्टेंटली फीलिंग लाइक ये क्या हो गया, या फिर constantly wanting to have some alone time, and that's not criminal because you're a human being. You're probably a new mother, you're changing your entire life for a child. I want to tell you through this video, jump into motherhood knowing what it is. ऊपर से स्किम मत करो ये चैप्टर, डिटेल में पढ़ो, किसी को बेबी सिट करो, किसी फ्रेंड के बच्चे को, थोड़ा अपने जो कपल फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे, उनसे पूछो उनका रूटीन क्या है. नो व्हाट्स कमिंग फॉर यू, सो दैट एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप आप कम कर सको और आप इंजॉय कर सको. इफ़ यू आर समवन हु इज प्लानिंग टू बिकम अ पेरेंट, प्लीज नो दैट मदरहुड हैज़ इट्स ओन रिवॉर्ड्स. बहुत क्यूट और स्वीट और हार्ट टचिंग होता है जब आपका बेबी आपको प्यार करता है. और पेरेंट्स का बच्चों के साथ कनेक्शन इज लाइक द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव, बट नो दैट इट कम्स विथ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, रेजिलियंस एंड पेशेंस. देर आर डेज यू विल नॉट फील लाइक यू आर योर सेल्फ. देर आर डेज आप मिरर में खुद को रिकग्नाइज नहीं करोगे. देर आर ऑल्सो डेज वेर यू विल फील टाइड डाउन. You will feel your independence has been curbed. I am not here to scare you. I want to tell you, go in prepared. And if you're somebody who thinks having a child is not for you, I have friends who have taken that decision. That's fine. Raise children out of passion and love. If you feel like आप दूसरे के बच्चों को प्यार कर सकते हो, बट आप खुद पेरेंट्स नहीं बन सकते हो, नहीं बनना चाहते हो, I think इस आज 2025 में that should be supported and that should not be judged. If you like this video, please don't forget to like, share, subscribe. Comments में ज़रूर बताइए अगर आप खुद एक मॉम है और आप रिलेट कर सकते हो तो, या फिर if you have any questions, I'm happy to answer. But yes, I'm going to bring so much more content in this series called Before You Become Parents. So watch out this space. Bye. Take care.